महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि उस बुद्ध का, उस मूर्ति का और उस शिल्पकार का सम्मान करना दरअसल ईश्वर का सम्मान करना है। मैं डॉक्टर जे.पी. मिश्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि एक पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत करें और आदरणीय अरविंद तिवारी जी शॉल उड़ाकर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। हमारे बीच ये तो द्वारका एक छोटी सी जगह है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में और पूरी की पूरी दुनिया में प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। अगर हम उन्हें पहचान पाएं, उनका सम्मान कर पाएं, तो दरअसल हमने ईश्वर की सच्ची वंदना की है। छड़ो लंगर मोरे बैया तरोना, छड़ो लंगर मोरे बैया धरोना, छड़ो लंगर मोरे बैया धरोना। मैं तो नार पराए घर की, मैं तो नार पराए घर की, मेरे भरोसे गोपाल रहो ना, मेरे भरोसे गोपाल रहो ना। छड़ो लंगर मोरे बैया धरो ना, छड़ो लंगर मोरे बैया। सर की ओर जिसके लिए आज ये पूरा मंच तैयार किया गया है, मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूँ हमारे सभी अतिथियों का कि कृपया इसमें सहयोग करें और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सम्मानित होने वाले सभी सदस्यों को शील्ड देकर हमारी अध्यक्षता कर रही श्रीमती कांति सिंह जी से कि वे शॉल उड़ाकर exhibition held in Toronto, Canada on October 17th this year. He was also honored as the special guest at the second Indian Property Award held on October 27, 2007. Shri Bhairav Singh Shekhawat, the erstwhile Honorable Vice President of India, conferred Best Administrator Award of the year 2000. Earlier in the year 2006, Shri Ashwini Kumar, Union Minister of State for Industries, honored him with the Best Administrator Award of the year 2006, a prestigious award instituted by the Builders Information Bureau (BIB), a well-known NGO. During his tenure in Gurgaon, the BIB also declared the Hudda Gurgaon as the best development authority for its modern state-of-the-art urban infrastructure and its contribution to the building industry. Srimati Sheila Dikshit, Honorable Chief Minister of Delhi, is now conferring Shri S.P. Gupta with the Pravasi Ratna Award 2007 for his distinguished services. जनता थे तब पूरे समय में उनके कार्यालय ने एक भी पत्र अंग्रेजी में नहीं लिखा। वे तकनीकी व करार के गूढ़ विषयों पर भी समस्त पत्राचार हिंदी में करते रहे। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के उप प्रधान हैं आज के समय में वे, और अभी हाल ही में न्यूयॉर्क से विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिभागिता करके लौटे हैं। आपका सम्मान करके यह संस्था स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है। डॉक्टर संजीव बगई, Senior, New Delhi. He was awarded the Best Citizen of India Award in 2005 and 2007, Delhi Medical Doctors Award of Excellence in 2005, Delhi Medical Association Award for Excellence in Pediatricians in 2006, Vijayashri Award in 2005, Bharat Jyoti Award in 2005, and today it is great pleasure for Pravasi Sangathan to honor you, sir, with this award. Youth. He is expertised in high-rise buildings, urban housing, earthquake-resistant architecture, energy-efficient buildings, and active and passive methods of solar energy. Extensive study of multi-storied apartments of Singapore, Malaya, Malaysia, Bangkok, San Francisco, Chicago,
latest development of Housing and Development Board, Singapore. Master Plan of Singapore, Urban Redevelopment Authority and Building Regulations of BCA Singapore. He is a research scholar of all these things. We are really honored to have you with us, sir. हमारे बीच डॉक्टर एमएल चौधरी, कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टर चौधरी का बहुमूल्य योगदान रहा है। मिसेस डॉक्टर एमएल चौधरी, मिसेस हमारे बीच हैं, मैडम चौधरी, और उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं चौधरी साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आपका बहुमूल्य योगदान रहा है कृषि और औद्योगिकी के क्षेत्र में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय औद्योगिकी संस्थान तथा वर्तमान में कृषि मंत्रालय में हॉर्टिकल्चर कमिश्नर के रूप में आप अनेक विधाओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। He has given significant contribution. He has given significant contribution for upgrading the technical skill of unskilled laborers who are engaged in various engineering and non-engineering industries. He has been awarded by Mr. Ashok Pradhan, former State Minister of Labour and Employment, for remarkable achievement in training 2000. Candidates of 55 villages in Greater Noida region belongs to disadvantaged group. The beneficiaries were trained in strong commitment to deliver work in time is really commendable. Always maintains highest level of integrity and trust. Very enterprising, excellent communication skills and a team leader. A social activist both at national level and village level. A scholar of patriotic civilization and spiritualism. His work in rehabilitation of tribals. और आपके हाथ में सम्मान चाहिए। 20 वर्षों से ये रेडियो टीवी से जुड़ी हुई है, तमाम कार्यक्रमों में एंकर किया है और गणतंत्र दिवस का आपको देखा हाल 8 सालों से सुना रही हैं। दूरदर्शन का बहुचर्चित पत्रिका ये कर रही हैं और मूर्धन्य साहित्यकारों का साक्षात्कार भी प्रस्तुत करती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अक्षर संगोष्ठी की संपादिका है। इसके अलावा सुरक्षित अनेक इनके कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं और कुछ एक अभी प्रकाशन के उसमें हैं। हम एक बार फिर इनका तालियों से स्वागत करते हैं। साहित्य, संस्कृति संरक्षण और आध्यात्मिक विकास में आपका मुख्य क्षेत्र है। कई छात्र आपके ग्रंथों पर शोध कर रहे हैं। भारत पौराणिकता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में आपका बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा है। आप श्रीमद् भागवत की वैज्ञानिक विवेचना जो कर रहे हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्यों में से एक है। यह संस्था इस विद्वत विभूति को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। श्री आर के मीना जी, श्री के आर मीना जी, आपके बहुमूल्य योगदान के लिए यह संस्था आपको प्रवासी रत्न से सम्मानित करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी भूमिका के हमारी जो दिल्ली डायनामो सभी यहाँ पर जिनको आज सम्मानित किया गया है और जो श्रोताओं के रूप में यहाँ आए हैं, और अंत में मैं उन सब बच्चों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपने संगीत से और अपने नृत्य से हमें बहुत ही खुशी प्रदान की है।
ये कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम है। अच्छा कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि हम जीवन में मेहनत करते हैं, सभी मेहनत कर और भी इरादा पक्का हो जाता है। और मैं आज के इस कार्यक्रम को विशेषकर शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देती हूँ, बधाई भी देती हूँ कि जो चयन किया है वो एक से एक आला चयन है। चाहे वो पढ़ाने वाले हों, चाहे एक आर्किटेक्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, या कोई इंजीनियर हो, और या किसी ने मानवता के प्रति काम किया हो, या हमारी अनिता जी ने जो अपनी वाणी से हम सब लोगों को प्रभावित भी करती हैं, मोहित भी कर लेती हैं। इस तरह की वैरायटी आप लोगों ने चुनी है, उसके लिए मैं आप संस्था को, तिवारी जी को विशेषकर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि आमूमन क्या होता है कि एक ही किस्म के लोगों को दिया जाता है। आप सब लोगों को निजी तौर से और मैं दिल्ली की ओर से आप सब लोगों को बहुत 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 बधाई। दिल्ली एक ऐसा नगर है जो सारे भारतवर्ष को दर्शाता है। यहाँ पर दिल्ली में कोने कोने भारत के लोग यहाँ आते हैं, तो यदि छोटा सा भारत दिल्ली का माना जाने तो मेरे ख्याल में ये बात असत्य नहीं कोई कह सकता है। और यही एक जगह है जहाँ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी रहन सहन का तरीका, वो अपने को उसको स्थापित यहाँ करके दिल्ली की संस्था, दिल्ली की संस्कृति और दिल्ली की भाषा और दिल्ली के जो तस्वीर उभर कर आती है उसमें चार चांद लग जाते हैं। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं धन्यवाद अंत में ये करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं अपने आप को समझती हूँ मुझे भी एक सम्मान मिला है कि आप लोगों के बीच में आ सकी और इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना योगदान दे सके, अपना भाग भी ले सकी। कांति जी, आप के प्रांत से दिल्ली में बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए बन गए हैं क्योंकि जो भी विकास या निर्माण का कार्यक्रम चाहे किसी स्तर पे भी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के स्तर पे हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे डॉक्टरी में हो, उन सब में इन दोनों प्रांतों का बहुत 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 बड़ा योगदान रहा है। तो दिल्ली में जब सभी लोग आते हैं, केरला से भी लोग आते हैं, पंजाब से भी लोग आते हैं, वो सब, और पाकिस्तान से भी बहुत लोग आए। 60 बरस पहले पाकिस्तान के लोग आए जिन्होंने दिल्ली की रूपरेखा कोई बदला, और दिल्ली में वो कीर्तिमान आप लोगों प्रवासी भारतीयों का जो योगदान रहता है वो दिल्ली को ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। और आज ये गर्व से हम सब कह सकते हैं, जिसमें हम सभी शामिल हैं, कि दिल्ली हिंदुस्तान की प्रथम नगरी के रूप में उभर कर आ गई है। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, रहन सहन की दृष्टि से देखें, वायु की दृष्टि से देखें, या मेट्रो की दृष्टि से देखें। किसी और सिटी में, कलकत्ते में जरूर मेट्रो हमारे से पहले आई थी, लेकिन वो सीमित रह गई, शायद 10 या 15 किलोमीटर है। अब आने वाले समय में द्वारका में भी एक लाइन तो मेट्रो की चली रही है, दूसरी और एयरपोर्ट से जुड़ जाएगी, तो द्वारका कितनी बड़ा एक रहने का स्थान बन जाएगा, इसकी कल्पना शायद हम यहाँ आज बैठ के नहीं कर सकते। कॉमनवेल्थ के गेम्स भी आ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों का योगदान की आवश्यकता होगी, इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी, यंग लोगों की आवश्यकता होगी, कलाकारों की आवश्यकता होगी। मैं कलाकार की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस बेटे ने ये गाना गाया था हम लोगों के साथ, और बिना किसी साज के गाया था, तो वो कितना अच्छा है। बाकी तो और सब लोग साज के साथ गाते ही हैं। उसको मैं विशेष आशीर्वाद बेटा आपको देती हूँ कि आप खूब ऊंचे जाइए।